السلام علیکم. جیسے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ناندیڑ میں دیگلور ناکے پہ محمد عثمان شاہی امام جو کہ آ رہے ہیں، تو دیگلور ناکے پہ حیدر گارڈن کے پاس ہم ابھی آئے والے ہیں. تو چلو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ابھی آگے. ابھی ہم حیدر گارڈن میں انٹر ہو چکے ہیں، تو جا رہے ہیں. جب اس کی تلاشی لی آئے گئی نہیں تو اس کے پاس ایک ڈائری ملی تو ابھی جا رہے ہیں. جس میں تقریباً 85 کے بیان چالو قریب ہے نام سلیمان موجود صاحب تھے، کا. اور وہ ایسے نام وہ مسلمانوں کے نام شک اور شبہ اختیار کر لیا. تو پھر ہم ایمان سے نکلتے چلے جا رہے ہیں. کر رہا تھا ہم نے کیا ہے. اب آپ سکون کا مظاہرہ پیش کریں. اب بتائیں کہ ناندیڑ والے متانت سنجیدگی کو اختیار کرتے ہیں. انسانیت کو بالخصوص علماء کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کسی قسم کی کوئی تکلیف ہم ہونے نہیں دیتے. حضرت کے ساتھ میں جو پولیس ہے وہ پنجاب کی. اے عرض سرور سر اونچا کر دیکھو مہمان آئے ہیں، امت کے نگہباں آئے ہیں، ملت کے بہیقہ آئے ہیں. توکل کے کھلے الفاظ ملے، ان سب کا تعارف پیش کروں. زمزم سے صدا کو دھو ڈالوں، سر چشمہ عرفاں آئے ہیں. آئیے اب اس کے بعد حضرت مولانا عثمان رحمانی لدھیانوی صاحب، سید عبد القادر صاحب، سید معین صاحب، مولانا عبد الوہاب صاحب بیتی، تمام حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع ہستی لا شریک کے نام سے جو سمندروں سے پانی اٹھا بولے اور سینہ چڑھا کر کے پورے فخر کے ساتھ اس بات کو دہرائیں اور چیخ چیخ کر یہ بتائیں کہ زمین پر گھر بنایا ہے لیکن جنت میں رہتے ہیں. زمین پر گھر بنایا ہے لیکن جنت میں رہتے ہیں. ملی عزت و رفعت وہ محسن و غمخوار ہمارا ہے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 برس پہلے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور جب ان کی نبوت کا اعلان ہوا اس وقت تک نوجوان زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. جب لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو یہ سمجھا دیا. دنیا کے تمام اس کے بعد جزاکم اللہ خیر الجزا. شکر اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نماز اچھی ہے. میں آپ لوگ بات کرنے کا شروع کروں. ہمارے کیونکہ سیلاب کی وجہ سے روز پروگرام ہو رہے ہیں تو اس لیے ہم تھوڑا ملتوی کر رہے تھے کہ غلط ہو جائے. حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. مگر میں باوجود اس کے
मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कटमरू में खा जाए बतहा की हुर्मत पर सल्लल्लाहु नमाज अच्छी है, रोजा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कटमरू में खा जाए बतहा की हुर्मत पर। खुदा शाहिद है में जाएगी जहाँ उसकी शादी है। उस यशरफ शहर से 500 मील और आगे एक इलाका है जिसको कैसरो किसरा कहते हैं। वहां के बादशाह का असूल है कि जो गरीब लोग हैं, अभी अगर ईशा की नमाज हो रही है, हम सब लोग जो स्टेज पे बैठे हैं, अगर मुअज्जिन तकबीर कह दे, इमाम नियत बांध ले, हम लेट पहुंचे तो हमें कहां जगह मिलेगी? पहली सब में भाई कहां जगह मिलेगी? अगर थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे तो दूसरी तीसरी सब में, थोड़ा और लेट हो जाए तो बरामदे में, और थोड़ा और लेट हो जाए तो सेन में, और जुम्मे की नमाज हो रही हो, खुतबा हो चुका हो, इमाम ने नियत बांध ली हो, अगर हम लेट पहुंचेंगे या कोई मुसलमान वजीर लेट आएगा या कोई मुसलमान अफसर लेट आएगा या कोई मुसलमान उद्योगपति लेट आएगा, कोई मुसलमान करोड़पति आदमी लेट आएगा, तो उसको कहाँ नमाज पढ़नी है? जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। ये कुरैशी और मेमन को हो सकते हैं, लेकिन पूरी मुसलमानों का जो सुप्रीम पावर हाउस है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की साथ है। अज़मत मुस्तफा वो नबी अलैहिस्सलाम की सर्टिफिकेट है, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ है कि जब नाम आता है तो पूरी कायनात के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और रसूलुल्लाह ने कितनी आसानी से दीन को समझाया। आपको पता है जब इस्लाम शुरू में आया 1450 साल पहले, जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, लोगों को खबर दी इस बात की कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया, तो सबसे पहले कौन मुसलमान हुआ पता है? सबसे पहले कौन मुसलमान हो गई? सबसे पहले हम सब की माँ अम्मी खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह, उनके बाद रसूलुल्लाह के दोस्त कौन? सिद्दीक़ अकबर, गुलामों में सैयदना बिलाल, अम्मार बिन यासिर, सैयदना सुमैया, सैयदना यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहू, सैयदना मीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब ये जब लोग मुसलमान हुए ना, अकीदत और होती है, मोहब्बत और होती है। अब जी बीवी बड़े प्रेशर, हाथ लगा नहीं सकते, आवाज दे नहीं सकते, पूछा अल्लाह करना क्या है? अल्लाह ने मैं करना क्या है? चल घूम के मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों की तरफ हो जा। यार अल्लाह मैं कदमों की तरफ हो गया, फरमाया अपने घुटने जमीन पर लगा, घुटने जमीन पर लगाए, फरमाया अपने जो होंठ है ना, इन होठों को मोहम्मद रसूलुल्लाह के तलवों से जोड़ दे, ताकि इनकी ठंडक से प्यारे महबूब की आंख खुले, ताकि कोई कायनात का ऐसा फरिश्ता और बंदा नहीं है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाथ लगा के उठाने की जरूरत है। अब मेरे सामने एक बेटी आ रही है। बेटी किसकी है भाई? जो बेटी आ रही है किसकी है? मुसलमानों की है? नहीं, रसूलुल्लाह ने अपनी चादर उतार के दी। वो चादर जिसको जिब्रील मौसा देना इज्जत की बात समझते, वो चादर उतारी, एक सहाबी को दी, फरमाया दौड़ के जाओ ना। तो रसूलुल्लाह के कानों की आंखें झुकने चली। जनाबे सालिबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक सहाबी है, नबी रसूल ने मस्जिद में कहा कि कोई किसी औरत की तरफ आंख उठा के न देखे, अगर गलती से देख लिया दोबारा न देखे। सालिबा बाजार में निकले, अचानक एक औरत पर निगाह पड़ी, गया इजाजतन दोबारा निगाह पड़ गई, रोने लगे कि रसूलुल्लाह की हुक्म मंजूरी हो गई।
दो साहब ढूंढते ढूंढते पहुंचे जंगल में। साहिबा पत्ते चबा रहा है, रो रहा है, बैठा हुआ। और साहिबा क्या हुआ? तो मैं रसूलुल्लाह ने कहा ये किसी की बेटी की तरफ दोबारा न देखना। साहिबा से गलती हो गई, अब मैं रसूलुल्लाह के आगे कैसे जाऊं? कि साहिबा ने एक और दो दफा देख लिया। इश्क तो आज भी अदा होगा कि जब हम तोलने के लिए बैठेंगे तो उसमें इंसाफ से काम लेंगे। इश्क तो अब भी अदा होता है कि जब अपने बाप के सामने खड़े हो तो हमारी आंखें झुकी हुई हो, कंधे पस्त हो जाएं। इश्क तो आज भी होता है कि जब हम अपनी माँ के सामने हो तो उसके कदमों में बैठ जाएं। इश्क तो अब भी अदा होता है कि जब हमारी मियां बीवी के दरमियान कोई गुफ्तगू हो तो हम अपनी बीवी की बातों को इसलिए तस्लीम करें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया कि रसूलुल्लाह ने कभी हमारी माओ को, जो उनकी बीवियां थी, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं डांटा। इश्क तो घर में भी अदा होता है, इश्क तो बाजार में भी अदा होता है, इश्क तो कारोबार में भी अदा होता है। इश्क करने वाला बंदा चाहिए। इश्क के मलाइक तो बहुत सारे होते हैं और दुनिया में मशहूर तो आशिक ही होते हैं भाई। कौन लोग मशहूर होते हैं भाई? अरे बोले कौन मशहूर होते हैं? आशिक कैसा भी हो मशहूर होता है। बिलाल रज़ियल्लाहु आशिक थे, पूरी दुनिया में मशहूर है कि नहीं? मजनू का नाम सुना? अरे मजनू का नाम सुना? लैला मजनू सुना? देखो इनको मियां जी को भी पता है कि लैला मजनू आशिक थे। इश्क इस अंदाज में किया कि लैला और मजनू को मरे हुए 1200 साल गुजर गए। मेरे अंदाजे से 1300 साल गुजर गए होंगे। मजनू का नाम कैस था। क्या नाम था उसका? कैस। अब लैला का नाम लैला इसलिए रखा, ये जो रात है ना, बाहर अंधेरा है, तो लैला जब पैदा हुई इतनी ज्यादा काली थी कि उसकी माँ को नजर नहीं आ रही थी, तो उसने उसका नाम काली रख दिया। अरबी में अंधेरे को लैल कहते हैं ना, तो उसने कहा लैला काली है ये। अब कैस और लैला का जब इश्क हुआ तो लैला इतनी मशहूर हो गई कि गांव का जो कोतवाल है उसको बड़ी फिक्र हुई, तो लैला के बाप के पास गया, बोला तेरी बेटी का बड़ा नाम सुना है कि उसको कैस से मोहब्बत हो गई, वो कितनी खूबसूरत है, मैं देखना चाहता हूँ। तो उसका बाप हंसा, उसने आवाज दी, अंदर से लैला आई तो आम लोगों से भी ज्यादा काली थी वो, जैसे तवा नहीं होता रोटी पकाने वाला, उल्टा करके उसको इतनी काली थी। अब जब लैला अंदर से आई तो उसने देखा ले ये तो बहुत ज्यादा काली। कैस मिल गया, कैस उनका हमनर था और कैस को पकड़ा, साथ में चल पड़े। कहने लगे यार कैस तुम जानते हो? हाँ जो मैं जानता हूँ इमाम साहब, आपने बड़ी कुर्बानी की है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरा ये बेटा उम्मत को जोड़ देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था